Hello students, today's topic is excretion. After completing this topic, the whole chapter life process will be completed for you people. So after studying this topic, now your work will be to prepare the answers for all the questions, the in-text questions as well as the exercise questions. Okay, now students, the whole chapter is divided into different topics like nutrition, respiration, transportation and excretion. Now, as we have seen the three topics, nutrition, respiration and transportation, the three processes which occurs in our each and every living being, it is necessary, no doubt, but the products that we get from the three processes is useful for our day-to-day life, but also there are some waste products which is very important to remove those products from our body, or you can say from any living being, right? So this process is nothing but excretion. Obviously in respiration we respire and we inhale and exhale, so oxygen goes in and carbon dioxide removes out. But in nutrition we eat many food. There are some food which gives us a lot of nutritional values. Those nutritions are absorbed into our blood, but baki ka part kya hota hai? That is waste, so it is removed. And some parts, like even in our transportation, there are some nitrogenous waste, or you can say any waste products, the byproducts of the useful things which are there in our blood. There are some byproducts, there are some waste products in our blood also. So there is a requirement to remove those waste products from our body. Now who does this? That process is known as excretion, but who is the one who does everything? The kidneys in our body are the ones who excretes out the waste products from our blood. Okay, fine. So this is kidney is human beings. Okay, this first we'll see the excretion in human beings and then we'll see the excretion in plants. Okay, so what is a definition of excretion? The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. See, metabolic activities, there are different activities going on in our body, and each and other activity, after the activity or the process is done, there are some materials left out which are known as waste. Okay, कोई भी process हम लोग करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो. आप खाना बनाने जाओ, आप लोग ने वेजिटेबल्स यूज़ किया, आप लोग तो कुछ नहीं करते होगे. चलो फॉर एग्जांपल मम्मी, घर पे मम्मी खाना बनाते हैं तो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट. वेजिटेबल्स यूज़ करने के बाद उसका कुछ तो लेफ्ट ओवर्स रहता है, उसके पील्स एंड ऑल एवरीथिंग. तो दैट इज़, कोई भी प्रोसेस आप करो, कोई भी प्रोसेस, उसका एक वेस्ट निकलना ही है, और उसका एक तरीका होना चाहिए वेस्ट को बाहर निकालने का. अगर हमने सब काम, हम खाना बना रहे, रोज़ खाना बना रहे, लेकिन हम वेस्ट प्रोडक्ट्स फेंक ही नहीं रहे, तो क्या होगा फिर? गंद मच जाएगी, है कि नहीं? हमारा घर ही डस्टबिन बन जाएगा. सो इवन इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द गार्बेज बिन्स इन आवर लोकेलिटी, इफ़ दे आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपर्ली, या डेली अगर क्लीन नहीं हुआ तो वो इट इज़ वेरी हार्मफुल, right? Same way in our body also, agar the waste products are not removed, then it is very harmful for each and every living being. Okay, so the process of removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. Okay, so we shall start with excretion in human beings. Now see, this is the excretory system, you can say, of a human being. Now students, see, simple सी बात है, excretion system में कितने you can say कितने मेंबर्स है या कितने पार्ट्स है. पहली बात तो 2 किडनीज़ हैं. ओके, द लेफ्ट किडनी एंड द राइट किडनी. ओके, फाइन. दो आपको यहाँ पे पाइप दिख रहे हैं, दे आर नथिंग बट एज द यूरेटर. एक है लेफ्ट यूरेटर, एक है राइट यूरेटर, एंड दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकलता है फ्रॉम द यूरेथ्रा. अंडरस्टूड? पहले तो किडनी में आता है, फिल्ट्रेशन इधर होता है दोनों किडनीज़ में. फिल्ट्रेशन होने के बाद
फिर थ्रू द यूरेटर जाता है, यूरेटर से जाने के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है एंड देन यूरेथ्रा में. नाउ यू विल आस्क मैम ये दो क्या है. सी स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस रेड वाला इज नथिंग बट योर, सी this blue wala is renal vein. Can you see? Blue one is your renal vein and your red one is your renal artery. It is not marked here, but understand it is here aorta. They have given us aorta. See, aorta हमारा क्या कर रहा था? From the heart, it is carrying the oxygenated blood from the heart to the different parts of the body. हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन में. And vena cava क्या करता है? Vena cava carries the deoxygenated blood from different parts of the body to the heart. ये दोनों थे ना, aorta is main artery, vena cava is main वेन. अंडरस्टूड? ठीक है, ये लोग ने यहाँ पे रीनल वेन ही दिया है, बट दिस रेड वाला इज रीनल आर्टरी एंड दिस ब्लू वाला इज रीनल वेन. आई विल एक्चुअली टेल यू द एक्चुअल प्रोसेस वो होता क्या है. सुन लो. पहली बात तो रीनल आर्टरी से, जैसे कि आप सबको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बराबर. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अपना किडनी भी आया कि नहीं? करेक्ट है. तो ये अपना जो ये है ना एओटा कैरी करके लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ओके, एंड देन वो स्प्रेड हो जाता है. स्प्रेड मतलब एओटा आया, देन इट विल पास ऑन टू this renal artery. It is not marked here student, but please remember कि जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू, ये जो पतला हुआ है देखो, दिस इज़ रीनल वेन ना. तो ये जो है, अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये ऊपर है, आई एम रियली सॉरी, ऊपर है. एक्चुअली ये ऐसे गया तो फिर आई थॉट कि शायद दिया ही नहीं है. नहीं, देखो रीनल आर्टरी दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग. ये एक जो है ये रेड वाला तो पतला पाइप हो गया, पतला सा टनल, एंड दिस ब्लू वाला पतला सा. तो ब्लू वाला जो है एक्चुअली ये मोटा वाला इज़ व्हाट? this one is your, sorry, this one is your vena cava, okay, this blue one. Then it passes the blood to renal vein. वैसे ही this main tunnel is renal artery, it passes it to, then it passes the blood to renal artery, okay, fine. This is aorta that passes it to renal artery. कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीक्वेंशली बताती हूँ. सुन लो. फर्स्ट यू विल राइट कि देयर आर डिफरेंट लाइक पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. फर्स्ट अ पेयर ऑफ किडनीज, ओके, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी. देन यू हैव एओटा which transfers the blood to renal artery. See, they have only mentioned left renal artery. There's also an artery to the right side of the kidney. ठीक है. मैं देखो सीधी सी बात है यार, मेन पाइपलाइन होता है हमारा वाटर का, ठीक है. अब मेन पाइपलाइन जो वाटर का है, हर एक घर में तो सीधा वो मेन पाइपलाइन नहीं जाता है. सो द मेन पाइपलाइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉल पाइपलाइंस विच गोज टू डिफरेंट एरियाज टू सप्लाई द वाटर. सेम वे मेन अपना जो पाइपलाइन है वो है एओटा और वेना कावा, बराबर. लेकिन एओटा और वेना कावा cannot reach inside the kidney, cannot reach inside our liver, cannot reach into our pancreas, right? वो इतना नहीं काम कर सकते यार. वो लोग सिर्फ कैरी करने का काम करेंगे, बाकी वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबको आगे काम, है कि नहीं. अभी हमारे स्कूल में भी प्रिंसिपल्स होते हैं. प्रिंसिपल्स कैन नॉट माइंड ईच एंड एवरी क्लास इन द होल स्कूल, सो देर आर डिफरेंट टीचर्स फॉर ईच एंड एवरी क्लास. सेम वे मेन पाइपलाइन है वेना कावा एंड एओटा, दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड into different pipelines for different organs. जैसे किडनी के लिए they are distributed into right and left renal artery. Aorta is distributed into right renal artery and left renal artery. Same way vena cava is distributed into right renal vein and left renal vein. But they here have mentioned only the left side because it is not possible to mention for the right side. You can't, that is not visible here, okay. इसलिए वो लोग ने सिर्फ लेफ़्ट साइड का दिया हुआ है, ठीक है. समझ गए. इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही रीनल आर्टरी है, यहाँ पे राइट के लिए राइट रीनल आर्टरी है, ठीक है. समझ गए, फाइन. अब काम क्या है ये दोनों का मैं बताऊंगी, एओटा एंड वेना कावा का. तब तक सिर्फ अभी एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लो. टू अ पेयर ऑफ किडनीज, ओके, अ पेयर ऑफ यूरेटर. पेयर ऑफ यूरेटर मतलब लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर. वन यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरेथ्रा.
pair of renal artery you can say, or renal artery, it is enough. Renal artery and renal vein. Understood? Fine. Done with the labeling part, done with the different parts. Now you see the different functions. अब मेरी बात अच्छे से सुनो. See your students, a pair of kidneys है. अब किडनी एक्चुअली होते किधर है? हमारे abdomen में. ठीक है, अपना जो स्पाइन है ना, स्पाइन अब्डोमिन मतलब फ्रंट साइड में नहीं, थोड़ा सा बैक साइड पे, स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू, ओके, साइडवेज में. अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये है लेफ़्ट वाला अपना, राइट मतलब ये लेफ़्ट किडनी का. लेफ़्ट वाला जो किडनी है ये थोड़ा ऊपर है और राइट वाला थोड़ा नीचे है. ये एक्चुअली में ऐसा ही है. आर राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन आर लेफ़्ट किडनी. वाई? बिकॉज राइट साइड में अपना लिवर भी है, इसके लिए तो ये थोड़ा सा नीचे है. सेकेंड पॉइंट इज योर लेफ़्ट वाला किडनी इज क्वाइट लार्जर, स्लाइटली बिगर देन दी राइट किडनी. ये इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. दिस इज़ एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जस्ट टू नो. आपको पता होना चाहिए यार, डिफरेंट साइज़ है दोनों किडनी के, सेम नहीं है. लेफ़्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है और राइट वाला थोड़ा छोटा है, और राइट वाला थोड़ा स्लाइटली लोअर है, नीचे है थोड़ा, क्योंकि राइट साइड में हमारा लिवर भी आता है. ओके फाइन. नाउ द ब्लड कम्स फ्रॉम द हार्ट थ्रू द एओटा, देन द एओटा passes it to the रीनल आर्टरीज. लेफ़्ट और राइट दोनों रीनल आर्टरी पे वो ब्लड पास करता है. ब्लड पास करने के बाद दोनों किडनी में जाता है. अब किडनी में होता है फिल्ट्रेशन. फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट आपका बना, जो भी वेस्ट, वाटर, योर एवरीथिंग, नाइट्रोजनस वेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर इट देर इज़ इन योर ब्लड, डिफरेंट एसिड्स भी है, तो वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो किडनी फिल्टर आउट कर लेगा. और जो बच जाएगा ना, जो वेस्ट है ना, वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. और कुछ चीज़ें, अभी सपोज ब्लड एओटा से आया, राइट, एओटा से डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो पार्ट में, एक तो लेफ़्ट रीनल आर्टरी एंड राइट रीनल आर्टरी. अब ये दोनों अंदर गए किडनी के ब्लड लेकर. अब किडनी ने उनको फ़िल्टर आउट किया. फ़िल्टर करने के बाद जैसे हमारी छलनी होती है ना घर पे, चाय हम लोग छलनी से करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं, तो चाय निकल जाती है बाहर, करेक्ट, बट वेस्ट रुक जाता है छलनी में, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, बट चाय को हम लोग पी जाते हैं. सेम वे इधर क्या किया उन्होंने, फ़िल्टर किया. फ़िल्टर करने के बाद जो भी वेस्ट था ना यूरेटर से, वो निकल गया यूरिनरी ब्लैडर में, और जो भी बचा था ना उन्होंने वापस किसको दे दिया, रीनल वेन्स को दिया. जो भी बच गया ना, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो किडनी विल नॉट कंसिडर इट एज अ वेस्ट. सपोज नहीं है यार वो वेस्ट है ना, तो वो वापस से जाएगा रीनल वेन में. और रीनल वेन्स कहाँ कनेक्ट करेंगे, वेनकावा में. वेनकावा लेकर जाएगा वापस कहाँ पे, हार्ट पे. ऐसे ही बहुत डिफरेंट स्मॉल यू कैन से ट्यूब्स है जो डायरेक्ट वेनकावा से कनेक्ट करते हैं सारे डिफरेंट पार्ट्स से. जो भी बोलते हैं ना लेफ्ट आउट पार्ट्स है, डीऑक्सीजनेटेड है ब्लड, वो वेनकावा कलेक्ट कर देता है और फिर वो हार्ट में लेके जाता है फिल्ट्रेशन. अरे अगर पूरा कचरा उठा के लेके हार्ट में लेके जाओगे और सीधा लंग्स पे जाएगा, तो आप सोचो लंग्स कितना दिन काम करेगा या हार्ट कितना दिन काम करेगा. अभी किडनी ने हाफ काम तो इधर कर दिया ना, जो भी ब्लड में था वो निकाला, जो भी वेस्ट था वो सब निकाल दिया इधर, और बाकी जो भी बचा वो वेनकावा में छोड़ दिया, मतलब रीनल वेन्स में छोड़ा, और रीनल वेन्स ने जाके वेनकावा में दिया, एंड वेनकावा फिर हार्ट में लेकर चले जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से डीऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेशन होगा एंड ऑल. ठीक है, सबका अलग अलग काम है. एक ही पार्ट पे अगर आप पूरा लोड डाल दोगे बॉडी का, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा ना, है कि नहीं. ठीक है, फिर अंडरस्टूड. फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, जो भी वाटर एंड ऑल, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम आवर नर्वस सिस्टम. ये जो प्रेशर है इसको कौन मॉनिटर करता है, या इसका रूल्स, इस पे जो भी ऑर्डर यूरिनरी ब्लैडर किसका ऑर्डर सुनेगा, नर्वस सिस्टम का. नर्वस सिस्टम इज आर फ्रॉम आवर ब्रेन. ओके, वो जब तक ऑर्डर नहीं देगा तब तक ये कोई काम नहीं करेगा. तो जब वहाँ से ऑर्डर आया कि बाबा ओके नाउ इट इज़ फिल्ड, प्रेशर जनरेट करेगा, देन इट विल पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा. Okay, and then it comes out of our body. This is the whole procedure. Now some extra information. See, kidneys में जाने के बाद किडनी
अकेला वो एक नहीं है जो पूरा फिल्टर करता है, किडनी के अंदर बहुत सारा क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, cluster of capillaries. Now understand na, aorta divided into renal artery, then now renal artery goes into the kidney and then it divides into a cluster of small you can say arteries का छोटा भाई is known as capillaries, right? Small arteries is nothing but as capillaries. तो capillaries में divide होता है, तो वो capillaries जो cluster है ना, उसको फिर आप zoom करोगे तो वो cluster किससे बना हुआ है? millions of nephrons. Nephrons is the basic यू कैन से फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज. अगर इसके अंदर नेफ्रॉन नहीं होता ना तो किडनी का कोई काम ही नहीं होता. अभी घर में हमारा वाटर फिल्टर्स होता है, राइट? एक्वागार्ड, यू कैन से वट एवर कंपनी यू हैव, वाटर फिल्टर्स होता है. वाटर फिल्टर दिखता इतना बड़ा है तो क्या वो फिल्टर आउट करता है क्या? नहीं. आप कभी भी देखो सर्विसिंग के लिए अगर आपके घर पे आते हो तो वॉच, वो लोग खोलने के बाद अंदर 2 फिल्टर्स होते हैं, 2 कार्बन रॉड्स बोलते हैं ना, यू कैन से 2 रॉड्स होते हैं, ठीक है? वो टनल जैसा 2 होता है, वो एक्चुअल फिल्टर करता है. ये तो ढांचा है पूरा अपना जो दिखता है ना अपने को फिल्टर है करके, वो एक सिर्फ एक मैनुअल, एक यू कैन से मैकेनिकल बॉक्स है जिसमें डिफरेंट बटन्स है, ये है वो है. वो नहीं करता, वो सिर्फ एक एंट्री का काम है और वो एक प्रोटेक्ट करके रखा है उसने. बाकी जो काम है वो अंदर वो करता है. सेम वे नेफ्रॉन्स करते हैं अंदर, जो किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनीज. ओके, तो सोचो कितना वो लोग काम कर रहे हैं नेफ्रॉन्स अंदर. तो नेफ्रॉन्स है और नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चरल फिगर यहाँ पे आपको दिखाया गया है. स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन इज दिस. बाय जूमिंग आउट यू विल सी अ नेफ्रॉन टू बी लाइक दिस. Now start we shall like cover up these highlighted points. As I said, pair of kidneys, pair of ureters, urinary bladder and a urethra, they are located in the abdomen. Fine. And I have said right wala thoda sa slightly lower than the left one and left one is slightly bigger than the right kidney. Understood? Fine. अब क्या क्या निकलता है? The nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. Fine? Okay, fine. उसके बाद जैसे lungs में बहुत सारा capillaries है, वैसे ही the basic filtration unit in the kidneys is a cluster of very thin walled blood capillaries. Okay, now each capillary cluster has what? This, can you see this cup shaped end of a tube. अब देखो यहाँ पे branch of renal artery इधर आता है. I shall zoom it out. So see here, जब renal artery यहाँ पे आया, can you see this? यहाँ पे बहुत क्लस्टर बना हुआ है. दैट क्लस्टर इज ग्लोमेरुलस. अब यहाँ पे होता है पूरा फिल्ट्रेशन और इसको कवर किया है बाउमन्स कैप्सूल ने. दिस इज द कप शेप्ड इज हर एक नेफ्रॉन के एंड में यू कैन से, और द स्टार्ट इज फ्रॉम योर ओनली. ठीक है, एंड तो सीधा ये कलेक्टिंग डक्ट एंड देन उसका सीधा यूरेटर में जाता है. सो दिस बाउमन्स कैप्सूल एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस इनसाइड इट. तो ग्लोमेरुलस के अंदर पूरा फिल्ट्रेशन होता है. मतलब यू कैन से, आप एक एग्जांपल जैसे बोलते हैं ना, एक फिश नेट आप एक इमेजिन कर सकते हो. फिश नेट जो एक्चुअली फिशरमैन यूज़ करते हैं बहुत बड़ा वो कैसे पूरा जम्बल्ड आउट होता है ना, तो उसके अंदर तो फिश को मतलब देखा ना उसका कितना थ्रेड जैसा जाली जैसा पूरा रहता है, तो फिश तो फंस ही जाता है उसमें. सेम वे जितना भी आपको बोलते हैं ना एक्सक्रीट आउट करना है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है एंड जो भी आपका एक्सक्रीट करना है फिर यहाँ पे जो आपको ये येलो पार्ट दिख रहा है यहाँ जाता है एंड देन फिर इट पासेज ऑन टू दिस थिंग, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज़ दिस येलो पार्ट एंड देन टू द कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग डक्ट से फिर जाता है यूरेटर में एंड बाहर निकल जाता है. अब जो चीज़ यहाँ पे जिसको बाहर नहीं फेंकना है, हमें वापस से रीअब्जॉर्ब करना है, वो कहाँ जाता है? ये देखो इधर से जाके रीनल आर्टरी से जाके फिर रीनल आर्टरी किसको देता है? रीनल वेन को, और रीनल वेन बाहर जाता है एंड देन टू द हार्ट. सॉरी, यहाँ से फिर वेना कावा में जाता है एंड देन टू द हार्ट. अंडरस्टूड द प्रोसेस कैसे आता है? रीनल आर्टरी से आता है. एक्चुअली यहाँ पे नेफ्रॉन में होता है फिल्ट्रेशन. ये पूरा होल नेफ्रॉन है, बट नेफ्रॉन के अंदर भी इतना सारा पार्ट है, तो उसके बाउमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है. अब बाउमन्स कैप्सूल के अंदर है ग्लोमेरुलस विच इज़ अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज. ओके, फिर यहाँ पे फिल्टर होता है, जो भी वेस्ट बन गया वो बाहर निकल के ऐसे
बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पढ़ लो, इसमें क्या है क्या। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ओके। सो डेफिनेशन ऑफ नेफ्रॉन विल बी इट इज़ द filtration unit of a kidney. Now I have some notes. What is a note? Nothing like that. जो भी मैंने आपको बताया बस वही है, ये पॉइंट्स है, ठीक है। किडनीज filter the blood and remove the waste products. They are bean shaped, okay, फाइन। उसके बाद ये लोग क्या क्या करते हैं, सम सब्सटेंसेज सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। कैन यू सी दिस? ग्लूकोज जो कि हमको एनर्जी के लिए चाहिए, अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन्स, सॉल्ट्स टू मेंटेन आर टेम्परेचर एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अगर कोई चीज़ है जिनका अच्छे से यूज़ अभी भी नहीं हुआ है, दे कैन बी रीयूज्ड, तो वैसे सब चीज़ें वापस से रीअब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं एंड दे आर पास्ड थ्रू द रीनल वेन टू द वेना कावा एंड देन द हार्ट, ताकि वहाँ से वापस से ऑक्सीजनेशन होके फिर हम अच्छे से ब्लड में वापस पास कर सकें। वही है ना, अभी ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं वापस, लेकिन अकेले यूज़ की जा सकती है क्या? इनको वापस ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वेना कावा हार्ट तक लेके जाता है, वहाँ पे वापस वो लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेशन होता है एंड देन अगेन थ्रू द एओर्टा अलग अलग पार्ट्स में जाता है एंड ये वापस से सब जगह पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही बोलते हैं ना, रीयूज़ हो रहा है सब चीज़ों का हमारी बॉडी में, ओके फाइन। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर कितना रीअब्जॉर्ब करना है, ये किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंड्स कि तुमने कितना पानी पिया है दिन में। अगर तुमने पानी नहीं पिया है, सपोज ज़्यादा तुम्हारे बॉडी में पानी ही नहीं है, तो क्या वो वेस्ट करेगा? वो अगर सारा ऐसे वेस्ट ही कर देगा, सब यूरिन से आपका निकल जाएगा, तो डिहाइड्रेट हो जाओगे आप एंड देन आफ्टर टाइम यू विल फेंट। सो बॉडी रिकग्नाइजेस, किडनी एक हद तक ना रिकग्नाइज करता है, अरे यार नहीं, इसके बॉडी में इतना पानी कम है तो मैं इतना पानी नहीं निकालता हूँ, छोड़ देता हूँ, वापस रीयूज़ करता हूँ। लेकिन एक हद तक रीयूज़ कर सकता है ना यार, वो रीयूज़ करेगा तो वो एक्चुअली हो चुका है उसका यूज़, बट वो जानबूझ के रीयूज़ कर रहा है बिकॉज वो प्रोसेस उसका कंटिन्यूस चल रहा है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर। दिस डज नॉट मीन कि अगर आप पानी पियोगे तो सब ऐसे ही वेस्ट, ऐसा नहीं है। आप जितना पानी पियोगे आपके सेल्स एंड टिश्यूज़ को चाहिए, सो इट विल रीअब्जॉर्ब। जब तक उस पानी का पूरा यूज़ नहीं हुआ है, इट विल कीप ऑन रीअब्जॉर्बिंग, और जितना यूज़ हो गया तो वो वेस्ट निकाल देता है, अंडरस्टैंड। बट अगर आप पानी कम पी रहे हो तो आपका यूरिनेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एंड इट इज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज देयर इज़ नो वाटर, सो क्या फिल्टर आउट करेगा एंड देन फिर प्रॉब्लम्स आता है एंड देन यूरेटर में, किडनीज़ में कैसे, किडनी स्टोन किसको बोलते हैं? सम पार्ट यहाँ पे कहीं स्टोन बन गया, सूख जाता है ना या ड्राई हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में स्टोन बन गया, तो इट स्टार्ट्स लाइक the problem starts. So it is better to drink a lots of water. It is very useful for our each and every part of our body, okay fine. उसके बाद so the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body और how much of dissolved waste there is to be excreted. अगर कुछ waste आपका है नहीं तो वो कुछ मतलब होगा ही नहीं ना, remove होगा ही नहीं, okay. The urine forming in each kidney eventually enters a long tube that is called as the ureter. So ureter is the tube which connects the kidney and the urinary bladder. This is the definition of ureter. The urinary bladder is a muscular part which stores the urine for a long time until the pressure is exerted from the nervous system. The urethra is the tube which helps in removing the urine from our body, okay. देखो, stored in the urinary bladder, pass it out through the urethra. Bladder is a muscular, so it is under nervous control. Fine, this is all about the excretion in human beings. The points which I have mentioned, please pause the video and write it down because some points are not mentioned in the textbook. So it's better you write it down. See, this is the artificial kidney. This is hemodialysis. जिसका किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी फेल हो गया है. So how the waste products are removed from the body? After some interval of time, the person needs to visit the doctor. Then the dialysis process is done. Dialysis में क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ब्लड में रहता है ना, वैसा एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है और एक पाइप लगा दिया जाता है टू रिमूव योर ब्लड. फिर ये जो सोल्यूशन है इससे पास होगा
वो ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से आपका जो वेस्ट है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा एंड जो जो चीज़ वापस रीअब्जॉर्ब करना है, रीअब्जॉर्ब करके वो ब्लड वापस आपके बॉडी में जाता है. ठीक है. सो दिस इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट, इट्स योर फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज. ओके, सी हियर यू कैन सी अ थिंग. इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर्स डेली, बट इतना फिल्टर पूरा बाहर नहीं निकलता है. एक्सक्रीटेड ओनली अ लीटर और 1 से 2 लीटर ही पूरे दिन में निकलता है, बट 180 लीटर्स डेली फिल्टर होता है. सोचो, अपना घर का एक्वागार्ड भी इतना काम नहीं करेगा जितना अपना किडनी काम कर रहा है. सो थोड़ा सोचो और उसको थोड़ा ज़िंदा रखने के लिए पानी पियो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स डजेंट ड्रिंक वाटर, आई डोंट नो वाई. उनको लगता है प्यास, अरे प्यास नहीं लगेगा, किडनी अपना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है. वो नहीं बोल सकता है कि अरे यार पानी दो, मैं सूख रहा हूँ. अंडरस्टैंड? सो इट्स बेटर यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है, इसका प्लांट्स के साथ कंपैरिजन ही नहीं है. उसमें कुछ किडनी नहीं है, वो कुछ एक्सक्रीट नहीं करता, उसमें यूरेटर नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, तो उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है? सिंपल देखो, ट्रांसपिरेशन करता है ना, स्टोमाटा से एक्सेस वाटर निकलता है, वो एक टाइप का एक्सक्रीशन है. फिर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है बाहर प्लांट से, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, है ना. सो ऑक्सीजन लाइक इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. आप जब प्लांट सेल पढ़ोगे तो वैक्यूल्स आपको दिखेंगे, वैक्यूल्स में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं. और कुछ लीव्स जो गिर जाते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एज द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन दैट लीव्स. जो डेड है तो वो गिर जाता है. ओके, रेजन्स एंड गम्स, जो भी ओल्ड जाइलम है, बुढ़ा हो चुका है जाइलम, अभी कुछ काम का नहीं है, तो उसमें स्टोर कर दो. ओके, सो कुछ सॉइल से भी एक्सक्रीट होता है. दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. आया तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको लिखना है. दैट्स इट ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन पार्ट. नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल एज द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, सो इट्स डन.